اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رسول ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جس کے لیے اتنے القاب اتنے اوصاف آئے کہ جن کے متعلق بہت سارے بزرگوں نے لکھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو خصوصیات عطا کی وہ میرے مصطفیٰ کو عطا کی، نوح علیہ السلام کو جو نجابت دی گئی تھی وہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا کی، ابراہیم کی خلت ان کو دی گئی، اسماعیل علیہ السلام کی ثبات قدمی آپ کو دی گئی، داؤد علیہ السلام کی صداقت آپ کو دی گئی، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال آپ کو دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ کو دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا جمال آپ کو دیا گیا، حسن یوسف دم ایزا ید بیضاداری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ سارے انبیاء کے معجزات اور کمالات آپ کو تنہا اللہ نے عطا کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو اپنے شعر میں یوں فرمایا، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کے درمیان جو مبعوث فرمایا، اندازہ تو کرو اے مومنوں ہماری کون سی حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، اور آج ہم کس حیثیت کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا انعام نازل کیا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کائنات میں بھیجا تو قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنایا، سارے جہانوں کی، وہ عالم ملکوت ہو، عالم ناسوت ہو، عالم نباتات ہو، جمادات ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، سارے عالم جتنے ہیں سب عالمین کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنایا۔ لیکن یہ بھی رسول پاک کی مہربانی، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ درود پاک پڑھیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان مبعوث ہونا، عزیزان گرامی اوقات ولادت باسعادت جس کے تذکرے ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حضور خود فرماتے ہیں میری حیثیت ایسے ہے جیسے کسی نے پورا محل بنایا، پورا محل بنایا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، کیا وہ محل کمپلیٹ مانا جائے گا؟ نہیں، ایک اینٹ کی خالی جگہ چھوڑ دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں، وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں۔ اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا، سارے نبیوں کو بھیجا، لیکن سب نبیوں میں کمال جو پیدا کیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات سے پیدا کیا۔ اب سنیے توجہ سے میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی کہ انا تلک اللبنہ، میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہمیں بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو پیدا کرنے سے پہلے یہ تمام چیزیں پیدا کی، کائنات میں زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب کیوں بنائے گئے، اور ان کے متعلق میں بتاتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضور آئے اس وقت میلاد منا لیا، ٹھیک ہے، اب حضور چلے گئے، حضور کو جا کر کے بھی 1400 سال ہو گئے، اب تک کیوں منا رہے ہیں آپ؟ ان کی تو وفات بھی ہو گئی۔ زندہ لوگوں کے برتھ ڈے منائے جاتے ہیں، زندہ لوگ اپنا جنم دن مناتے، رسول پاک چلے گئے اب تک کیوں منا رہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں، عالم برزخ میں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک دلیل کے ذریعے سے یہ بتاؤں کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کچھ محفلیں ہوتی ہیں جو کسی خاص شخص کے لیے سجائی جاتی، ہوتا ہے شادی کا منڈپ، شادی کا ہال، آپ نے دیکھا ہوگا لائٹنگ بھی لگی ہے، کمکمے بھی لگے ہیں، اور پھر پھول بھی لگائے گئے ہیں، کرسی بھی رکھی گئی ہے، کس کے لیے میاں بتائیں؟ دولہے کے لیے۔ کس کے لیے؟ ایک شادی کا منڈپ اور شادی کا ہال ہے، وہ کس کے لیے سجایا جا رہا ہے؟ دولہے کے لیے، اور باراتی کچھ پہلے آئے کچھ اس کے ساتھ آئے، پہلے سے آنے والوں نے انتظام کیا اور استقبال کیا، اب کرسی پر لا کر بٹھا دیا گیا دولہے کو، ہال بہت سجا ہوا ہے، پھول بھی لگے ہیں، لائٹ بھی لگی ہے، سب کچھ لگا ہے، دولہے کا نکاح ہو گیا، کھانا ہو گیا، اور دولہا اپنی دلہن کو لے کر رخصت ہو گیا شام میں، یا دولہا چلا گیا۔ اب مجھے بتاؤ کیا وہ لائٹنگ ویسی رکھی جائے گی؟ کیا وہ پھول وغیرہ ساری چیزیں ویسی باقی رکھی جائیں گی؟ کیا کریں گے؟ نکال دیں گے نا۔ میاں وہ دولہے کے لیے آج کے دن کے لیے سجایا گیا تھا، شادی ہے، شادی ہو گئی، دولہا چلا گیا تو باراتی بھی نہیں بیٹھتے،
चले जाते हैं। दूल्हा जाने के बाद हाल भी बेहाल होता, सब खत्म हो गए, कोई सजावट बाकी नहीं रहती। ये दुनिया का दस्तूर है, इसको जहन में रखें। अब मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ने अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, लौलाका लमा खलक़तु दुनिया वला फलाक वला वदीन। ऐ रसूल, अगर आपको पैदा करना ना होता तो न मैं ज़मीन को बनाता, ना आसमान को बनाता, ना दुनिया को बनाता। ऐ रसूल, जो कुछ भी यहाँ बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया? आपके लिए बनाया गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया गया। अब मैं बताता हूँ आपको, ये ज़मीन का बिछोना बिछाया गया, आसमान की छत तानी गई और उसमें सजावट के लिए तारों को जगमगाहट दी गई, चांद और सूरज को झिलमिलाया गया, दरख्तों के कुमकुमे लगाए गए, दरियाओं की मौजें बहाई गई, ये सारी कायनात की सजावट बनाई गई। और फिर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बारातियों की शक्ल में नबियों को भेजा गया। सारे अंबिया आए, हर नबी ने उस आखिरी नबी का ही कसीदा पढ़ा। हर नबी ने कहा मैं असल नहीं, मेरे बाद आने वाले हैं जिनका नाम नामी मोहम्मद होगा। हर नबी ने उस नबी के आने की बशारतें दी। अब मुझे बताओ, ये कायनात किसके लिए सजाई? रब्बे जुल जलाल ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जमीन का बिछोना बिछाया, आसमान का छत ताना गया, तारों की जगमगाहट, सूरज और चांद की झिलमिलाहट, दरख्तों के कुमकुमे, दरियाओं की मौजें, ये सारी सजावट मुस्तफा करीम आपके लिए थी। नबियों की ये बारात आपके लिए थी। अब 12 रबीउल नूर को वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हे की शक्ल में तशरीफ लाए, इस कायनात में आ गए और कितने साल बिताए? 63 साल की जिंदगी बिताई और फिर इस आलम जाहिर से रूपोश हो गए। अब जो बात हमें करनी है वो यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए भी, 63 साल यहाँ सबके आंखों के सामने रहे भी और उसके बाद आंखों से जलवा अफरोज, आंखों से रूपोश होकर अपनी कब्र पाक में जलवा हो गए। लेकिन अब सवाल जो है हमारा ये है कि हमने दुनिया में तो देखा दूल्हे के जाने के बाद सजावट निकाल दी जाती है, दूल्हे के जाने के बाद महफिल में से लाइटिंग भी खत्म होती है, फूल भी निकाल लिए जाते हैं, कुर्सी भी हटा दी जाती है, सब खत्म कर दिया जाता है। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो उनके लिए ये जो चीजें सजाई गई थी, चांद अभी क्यों चमक रहा है, सूरज अभी क्यों झिलमिला रहा है, तारे अभी क्यों जगमगा रहे हैं, ये दरख्त अभी क्यों बाकी हैं, ये समंदर की लहरें अभी क्यों बाकी हैं, ये जमीन का बिछोना अभी क्यों बिछाया गया, आसमान का छत अभी तक क्यों ताना गया? तुम्हें जवाब मिलेगा, नादान तुझे पता नहीं, वो दूल्हा अभी जिंदा है। तुम जिसके मुतालिक ये बात कर रहे हो वो दूल्हे आम होते हैं जिनके जाने के बाद सजावट निकाल ली जाती है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ऐसी है कि उनके आने के लिए ये सब सजाया गया और वो अपनी कब्र में हैं तब भी ये चीजें बाकी रखी गई, इसलिए कि कब्र में वो फितरत के तकाज़ों के एतबार से रब्बे जुल जलाल के वादों के मुताबिक मौत की चादर को तो उन्होंने ओढ़ लिया, लेकिन हमारा अकीदा यह है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और एक बात अज़ीज़ान निगरानी वक़ार। अब एक बात यह भी है कि आज भी हमारे दिलों पर अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो मदीने के ताजदार है। हमने बादशाह अगर किसी को माना है तो अपने रसूलुल्लाह को माना है। हमारा लीडर, हमारा कायद क़ुदवतुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे मौला भी हैं, हमारे दाता भी हैं, वही सब कुछ है। इसलिए कि हमने बचपन से कानों से यही सुना, जुबान से यही पढ़ा, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए
कि है रजा बेकसों का सहारा वो हमारा नबी। हमने रसूल पाक को कल भी शहींशाह माना, आज भी मानते हैं, बल्कि कब्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं और हश्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं। हश्र के दिन भी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान देखी जानी है। अज़ीज़ान गिरामी, इसको भी मैं एक बार मसले से हल कर दूं, बाज़ लोगों ने ये बात छेड़ी है, तो आपको एक बात मैं बताऊं, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सल्तनत और शहींशाहियत को हम इस अंदाज से भी साबित करते हैं कि बादशाहों का निज़ाम आपने देखा होगा, बादशाह जब कुर्सी पर बैठता है तो उसके अगल बगल वजीर हुआ करते हैं, होते हैं, वजीर बैठते हैं। पहले ज़माने का ये उसूल था कि वजीर अगर बादशाह के बगल में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा है, बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा। अगर वजीर उठ गए, वजीर चले गए, तो इसका मतलब है कि बादशाह अब अकेला आराम करना चाहता है, अब रियाया करीब नहीं जाएगी, रियाया करीब नहीं जाएगी। ये पुराने जमाने का दस्तूर हुआ करता कि बादशाह का तख्त जब बिछा जाता और कुर्सी शहंशाहियत की लगाई जाती तो उसके अगल बगल वजीर होते, और वजीरों का होना इस बात की अलामत होती कि बादशाह अपनी बादशाहत पर कायम है और रियाया की सुनने के लिए तैयार है। अब सुनो मेरे अजीजों, रसूल पाक जब तक ज़ाहिरी हयात में थे, हर अमीर और गरीब अपनी हाजतें लेकर रसूलुल्लाह के पास हाजिर होता, नहीं होता? सहाबा हैं उसमें। एक सहाबिया अपने बच्चे को लेकर आई, गूंगा है मेरा बेटा, 8 साल 9 साल का हो गया, अब तक बोलता नहीं। हुजूर के पास ले आई, कहा हुजूर इसका कुछ कर दे, कोई दवा खिलाई, कोई दुआ दी, कुछ नहीं। हुजूर पाक ने उसको कहा बच्चे को सामने कर, बच्चा सामने आया, मेरे आका ने सिर्फ इतना फरमाया, मन अना, मैं कौन हूँ? बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मद। कुव्वते गोयाई मिली, इतना ही नहीं, एक सहाबी नाबीना थे, वो आए हुजूर की बारगाह में, कहा आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, या रसूल अल्लाह आप कुछ फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया मस्जिद में जाओ, 2 रकात पढ़ो और मेरे नाम से अल्लाह की बारगाह में मांगो। ये दुआ तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। रसूल पाक के वसीले से उस सहाबी ने अल्लाह से मांगी, वो मस्जिद के दरवाजे से निकलने से पहले आंखों में उनके उजाला हो चुका, आंखों में नूर आ चुका था। सहाबा अपनी हाजतें लेकर किसके पास जाते? रसूल पाक के पास जाते। गुनाह हो जाए तो हुजूर के पास जाएं, बीमारी हो तो हुजूर के पास जाएं। यही तो अकीदा बरेली के ताजदार ने हमें दिया था, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करो, शापियो नापी हो तुम, वापियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा। ये मांगने का तरीका भी हमें सहाबा से मिला है, ये सिर्फ बरेली का अकीदा नहीं है, बरेली वाले ने सहाबा का अकीदा लिया है। बरेली का अकीदा कहाँ से आया? सहाबी से आया। हाँ, एक बात साफ समझ करके चले, अल्हम्दुलिल्लाह बरेली का अकीदा सहाबी से आया और सहारनपुर देवबंद का अकीदा वहाबी से आया, बस इतना सा फर्क है। और सहाबी का अकीदा वही है जिसको रसूलुल्लाह ने तालीम दी। अब मैं आपको जो बात कहने जा रहा था वो ये है कि जब तक मेरे आका आलमे ज़ाहिरी में थे, हाजतें लेकर सहाबा आते रहे। अब लोगों का यही कहना है ना, किसी जोकर ने ये कहा था आप रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, सुना होगा आपने। हुजूर पाक अब इंतकाल फरमा चुके, मांगना हराम है, नाउज़ुबिल्लाह, ज़ालिम, और तुम्हें पता ही नहीं वो अब भी बादशाह। उस वक्त सहाबा मांगते थे, जाहिर सी बात है वो बादशाह थे। जो मैं बात कह रहा था वो क्या है, वजीर बगल में बैठते हैं तो ये इस बात की अलामत होती है कि बादशाह अभी भी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा है। अब सुनो, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे 4 वजीर दिए, 2 आसमान में और 2 जमीन में। आसमान के वजीरों का नाम जिब्राइल और मीकाइल है, और जमीन के वजीरों का नाम अबू बकर और उमर है। जमीन के वजीरों का नाम अबू बकर और उमर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक के पास जाने वाला हर सुन्नी जानता है मेरे आका की कब्र पाक है, और आपके पहलू में कौन आराम कर रहा है? आपके पहलू में अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर आराम फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया दुनिया में ये दोनों मेरे वजीर हैं। वजीर आज भी पहलू में बैठे, इस बात की अलामत है कि बादशाह अब भी रियाया की हाजत है।
इतना ही नहीं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, इतना ही नहीं मेरे अजीजों, वो रसूल पाक के पहलू में अभी सिद्दीक अकबर भी जलवाबार हैं, फारूक आजम भी जलवाबार हैं, दोनों वजीर उस बादशाह आजम के पास आज भी हैं। ये इस बात की अलामत है कि बादशाह अभी भी उम्मत की हाजतें सुनने के लिए दरवाजा खुला रखा है। और हुजूर पाक फरमाते हैं क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा, जब सूर फूंका जाएगा, महशर का मैदान जो कायम होने वाला है उसके बारे में हुजूर फरमाते हैं जो सबसे पहले महशर के मैदान में अपनी कब्र से उठेंगे कौन? हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं उठूंगा और उसके बाद अबू बकर और फिर उमर उठेंगे। हुजूर फरमाते हैं मैं मैदान महशर में भी इस हाल में आऊंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा उमर के कंधे पर होगा। या रसूल अल्लाह, महशर के दिन भी दोनों वजीर पहलू में हैं। पता ये चला कि वहां पर भी चलेगी तो सिर्फ मुस्तफा की चलेगी। आला हजरत ने यही तो फरमाया है, खलील व नजी मसीह व सफी सभी से कहीं ना बनी। यही फरमाते हैं आला हजरत, खलील व नजी मसीह व सफी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे। या रसूल अल्लाह, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और महशर का मैदान भी इसीलिए कायम किया गया है, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुर्दा कहे माज़अल्लाह, वो अज़ली मुर्दा है। उसका दिल मुर्दा, उसकी आंखें मुर्दा, उसकी अकल मुर्दा। जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मौला ताला उसकी हिदायत और उसके ईमान को ख़त्म फरमा चुका है, उसके कल्ब पर मोहर लग चुकी है। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों का हाल तो ये है। अबू अय्यूब अंसारी जो रसूल पाक के मेज़बान हैं, हुजूर की वफ़ात के 60 साल के बाद हुजूर की कब्र अनवर के पास जाकर बैठते। मरवान बिन हकम जो उस जमाने का गवर्नर था, वो पीछे से आया, देखा नहीं, जानता नहीं था कौन बैठे हैं, उठाया कि यहाँ क्या कर रहे हो? अबू अय्यूब अंसारी सहाबी का अकीदा सुने, कहते हैं लम आती बिहजरिन बल आती इला रसूलिल्लाह, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल के पास आया। सहाबा का भी यही अकीदा था कि कब्र में जाने के बाद भी वो अल्लाह के रसूल ही हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। मेरे अजीजों, इसीलिए तो आज भी हमारे कलमे में यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका माना क्या है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं कि थे? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इतनी अकल तो मुसलमानों को दी, ग्रामर अरबी के नहीं जानते फिर भी कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तो उन जालिमों को क्यों नहीं समझाते जो कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए? माज़ अल्लाह, हम कलमे में भी कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। इसका मतलब है कि आज भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, कल भी थे और क़यामत तक रहेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलम बरज़ख में आज भी बाहयात हैं। अब आइए, जो बात शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक है, वो चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ। रसूल पाक के मकाम को हम गरीब और हम गुलाम क्या बयान करें? दर हकीकत हम अपनी शान ही बुलंद करते हैं। जो भी रसूल पाक की बात करेगा उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। इतनी बात याद रखना, जो नबी की बात करेगा उसकी बात बढ़ जाएगी पूरी कायनात में। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन यही तो कहते थे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, आप भी कर करके देखो हुजूर पाक की तारीफ और तौसीफ। जब मेरे मुस्तफ़ा की अजमत बयान करोगे, कौम तुम्हें अपने सर पर बिठाएगी। ये अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है, जो नबी की इज्जत करेगा अल्लाह पूरी कायनात से उसकी इज्जत करवाएगा, उसकी इज्जत करवाएगा। आज यहाँ तैबा मस्जिद मुमरा की सरजमीन पर यहाँ मौजूद कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने आला हजरत को देखा है। कोई देखा है? नहीं देखा, लेकिन नारा लगता है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं पूछता हूँ, क्यों मियाँ तुम्हारे खानदान के थे? क्या तुम्हारा कोई रिश्ता है? ननिहाली ददियाली रिश्ता है? कुछ नहीं। आप यही कहेंगे कि सिर्फ इसलिए नारा लगता है कि वो आला हज़रत कलम उठाते थे तो सिर्फ नाते मुस्तफ़ा किया करते थे, और उन्होंने ही हमें ये सिखाया है, सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का बोले ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। जब उस उनके ज़माने में
ظالم یہ کہہ رہے تھے پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے، اور گدھے کے خیال کے آنے سے بدتر کہا جا رہا تھا معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے زمانے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قلم اٹھا کر کے کہا، کیا کہا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، بریلی کے امام نے جو ایک عشق ہمیں دیا ہے وہ عشق کو فالو کرو، دیکھنا تمہارے دل حضور سے کتنا قریب ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج جو ہماری زبانوں میں بولنے کی سلاست آئی ہے یہ صرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی دین ہے۔ عزیزان گرامی، میں بات کس بات کی کر رہا تھا؟ جو رسول اللہ کی بات کرے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کا بھی نام کبھی مرنے نہیں دیتا، اس کا بھی نشان مٹنے نہیں دیتا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے، تعریف کرنے والے ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں کہ نام اب بھی ہمارے درمیان زندہ ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ قصیدہ بردا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ 700 سال ہو گیا جس نے یہ قصیدہ لکھا تھا، وہ امام شرف الدین بوصیری، حضور کی محبت میں ڈوب کر کے لکھا تھا، غموں کے آنسو بہا کر کے لکھا تھا، حضور کو تنہائی میں یاد کر کے لکھا تھا، اور اللہ کو اتنا پسند آیا، میرے رسول کو اتنا پسند آیا کہ ان کے زمانے میں اپنی چادر سے بھی انہیں نوازا، ان کی فالج کی بیماری کو بھی دور کیا۔ اتنا ہی نہیں، آج بھی میں نے دیکھا ہے مدینہ طیبہ میں روضہ رسول پر جب حاضری ہوئی، میری آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات عرض کرتا ہوں، حضور کے حجرے میں جو جالیاں ہیں، داخل ہونے کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کی کڑی پر آج بھی امام بوصیری کا شعر لکھا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ کتنے 100 سال ہو گئے لیکن رسول اللہ نے اپنے قدموں میں ان کو قبول فرمایا ہے۔ جو نبی کی شان بیان کرے گا وہ کبھی مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام